Hello students, a very warm morning to all of you. Students of class 3rd, how are you all? I hope so all are fit and fine. So students, as you all know, we are having the revision work after completing the chapters of annual examination or annual syllabus. So students, now it's time to start to open your English course book. Open it fast and take out the page number 58 today. Page number 58. And today we will do the revision of next chapter, and it's called Avni, Dadu and Mum. Avni, Dadu and Mum. So we will see the exercise of the chapter like let's try to. Let's try to. ठीक है, तो क्या है ये आपकी, चलिए देखते हैं. There are 3 main characters in the story. Yes, we know there are 3 main characters in the story, as you all have read the story. Each one has their story to share. Okay, all are having their story for sharing with us. Blanks to tell each pictures are each person's side of the story. Means there are given some blanks, you have to just tell these person's side of the story. Students, it is very very important exercise because this type of exercises you can have in your fill in the blanks. ठीक है, fill in the blanks में ये सारी exercises आपको मिल सकती हैं. So let's revise it very carefully. Okay, start to read with me. So first story, the first main character is about Dadu. Okay, now Dadu has started to recite his story. Dadu has started to tell about himself. ठीक है, दादू ने अपने बारे में बताना यहाँ पे स्टार्ट किया है. तो देखते हैं दादू यहाँ पे क्या क्या बता रहे हैं. Okay, yes, see there's Dadu. Yes, now Dadu is telling I come from a large family. Means मैं एक लार्ज फैमिली को बिलोंग करता हूँ. ठीक है, मैं कैसे फैमिली को बिलोंग करता हूँ, लार्ज फैमिली को बिलोंग करता हूँ. आई हैड ब्रदर्स. मीन्स हाउ मेनी ब्रदर्स आई हैड, मीन्स मेरे पास जो मेरे कितने ब्रदर थे. येस, हम लोग 3 ब्रदर थे. कितने ब्रदर थे, 3 ब्रदर थे. एंड 4 सिस्टर्स. एंड हाउ मेनी सिस्टर्स वर विद मी. येस, 4 सिस्टर्स थे. 3 ब्रदर्स थे और 4 सिस्टर्स थे. इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग जो फैमिली है, मैं लार्ज फैमिली को बिलोंग करता हूँ. No one paid much attention to me, and if we were having these 7 brothers and sisters, that's why no one was caring or making attention to me. Sometimes I felt. Sometimes क्या होता था, I felt. तो जब आप means suppose that if someone is not giving attention to you, that means you will feel lonely, you will feel alone, है ना. तो समटाइम्स आई फेल्ट, और इसलिए क्या होता था, जब मुझे कोई भी अटेंशन नहीं देता था, मुझसे टॉकिंग नहीं करता था, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता था, सो देन आई फील लोनली. मैं लोनली फील करता था. ठीक है, मीन्स अकेला फील करता था, एलोन फील करता था, लोनली. ओके, एंड नाउ दादू इज स्टार्टेड टू टेल अबाउट स्टोरी अबाउट. दादू हैज स्टार्टेड टू टेल अबाउट द स्टोरी. ओके, अबाउट ऑन वन फ्राइडे. येस, वन फ्राइडे व्हाट हैपेंड, आई वॉज टेकिंग अ बाथ इन बाथ टब. ठीक है, एक दिन क्या हुआ, एक फ्राइडे को मैं बाथ टब में बात कर रहा था. इन दी कोर्ट यार्ड. वेयर, कोर्ट यार्ड में. ठीक है, कोर्ट यार्ड में मैं बाथ टब में बात कर रहा था. ओके, नो वन वॉज लुकिंग एट मी एंड हु वर देयर. और जो भी इनके ब्रदर सिस्टर्स थे वो क्या कर रहे थे, उनको देख नहीं रहे थे, लुकिंग नहीं कर रहे थे, उनके तरफ अपना अटेंशन नहीं दे रहे थे. किसके तरफ, दादू की तरफ. दी वाटर वॉज गेटिंग. वाटर जो है वो गेटिंग हो रहा था. क्या हो रहा था, गेटिंग हो रहा था. कोल्डर एंड कोल्डर. मीन्स आफ्टर सम टाइम वाटर वॉज जस्ट गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर. वाटर ठंड होती जा रही थी, कोल्ड होती जा रही थी. ठीक है, देन सो आई सेड. देन दादू सेड आई कैन सिंग अ सॉन्ग. मीन्स दादू थॉट टू सिंग अ सॉन्ग. दादू ने एक सॉन्ग को सिंग करने के लिए डिसाइड किया. When no one heard means when the cold water was when the water was getting colder and colder. तो दादू है वो क्राइंग कर रहे थे. now water is getting very cold, how will I take bath. okay, it is getting so colder, but no one was listening and making attention to Dadu. okay, that's why Dadu started to sing a song. when no one heard, जब किसी ने भी इनके बातों को नहीं सुना, अटेंशन नहीं दिया, तो उन्होंने क्या कहा, स्टार्टेड टू सिंग लाउडली. दादू ने बहुत ही लाउडली सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, वो गाना गाने लगे, सिंगिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, वो भी बहुत लाउडली वॉइस में.
After that what happened? I became the singer of the family. And after some time, okay, while singing, आफ्टर सम टाइम आई बिकेम, मैं क्या हो गया, कुछ टाइम के बाद मैं अपनी फैमिली में एक सिंगर हो गया, मैं एक सिंगर बन गया. एवरीवन स्टार्टेड टू प्ले. Everyone started to play and talk to me. And now after that, those who were not caring or making attention to Dadu, now they all have started to play and talk with him. और जो लोग अब अटेंशन नहीं दे रहे थे, उनके साथ नहीं टाइम स्पेंड करते थे, वो सारे लोग अब दादू के साथ प्लेइंग करने लगे और उनसे टॉकिंग भी करने लगे. ठीक है. दी होम सीम टू बी अ गुड प्लेस टू बी इन. और जैसे पहले दादू जो थे उनसे जब कोई टॉकिंग नहीं करता था, बिल्कुल लोनली फील करते थे, तो क्या होता था, होम जो है उनको वो अच्छा प्लेस नहीं फील होता था. बट आफ्टर conversing with his brothers, sisters and all the remainings, now Dadu feels very good to be in that home. ठीक है. इसके बाद दादू जो है बहुत ही अच्छा फील करने लगे और वो होम में रहने लगे. ठीक है. चलिए अब हमारी नेक्स्ट स्टोरी जो है, नेक्स्ट मेन कैरेक्टर इज अबाउट अवनी. ओके, नाउ अवनी स्टार्टेड टू टेल हर स्टोरी. अवनी जी स्टोरी, अवनी इज हियर, शी स्टार्टेड टू टेल दिस स्टोरी. शी इज टेलिंग अस, दादू पिक्ड मी अप फ्रॉम स्कूल ऑन ट्यूसडे एज यूजल. मीन्स दादू जो है वो एज यूजल हमेशा वो अवनी को जाते हैं स्कूल से पिकअप करके लाते हैं हमेशा, नॉट ओनली ऑन ट्यूसडे एंड वन मोर डे ऑल्सो ही पिक्ड अवनी टू स्कूल, फ्रॉम स्कूल टू होम. ठीक है. तो दादू ने अवनी को क्या किया, ट्यूसडे को एज यूजुअली उनको होम पे लाया. वी टॉक टू हिज हाउस, वी वॉक टू हिज हाउस. और वो लोग कहाँ गए, वो लोग अवनी जो है वो अपने दादू के होम पे गई. दादू हैज़ मेड माई फेवरेट फूड. और दादू ने क्या किया था, दादू ने अवनी का जो फेवरेट था वो फेवरेट फूड बनाया था. और फेवरेट फूड उनका क्या था, वेजिटेबल बिरयानी. मीन्स अवनी लाइक्स टू मच टू ईट वेजिटेबल बिरयानी. उनको बहुत अच्छा लगता था और दादू ने वही अवनी के लिए बनाया था. ठीक है, उनका फेवरेट फूड बनाया था. नेक्स्ट आपका है, As I was laying the table, I heard Dadu singing. Okay, as I was laying table, and जैसे ही दादू जो है, अवनी जो है वो टेबल पे बैठी हुई हैं. I heard दादू सिंगिंग. उन्होंने क्या देखा कि दादू जो है वो सिंगिंग कर रहे हैं. He told me he came from a large family, and then Dadu told he belongs to a large family, and no one noticed him much till he started to sing. मीन जब तक इन्होंने सॉन्ग को सिंगिंग करना स्टार्ट नहीं किया था तब तक उनको कोई नोटिस नहीं करता था, उनकी तरफ कोई अटेंशन नहीं बताता था. एंड व्हेन ही स्टार्टेड टू सिंग, ऑल हैव स्टार्टेड टू टॉक एंड मेक अटेंशन टू दादू. ठीक है. इन द इवनिंग व्हाट हैपेंड, व्हाइल मम वाज वॉशिंग द डिशेज. ओके, इवनिंग के टाइम में जब ये अवनी की मम्मी जो हैं वो डिशेज वॉश कर रही थी, आई स्टार्टेड टू सिंग. हु स्टार्टेड टू सिंग, अवनी ने क्या किया, अवनी ने सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया. ओके, एक सॉन्ग स्टार्ट कर दिया सिंगिंग करना. दैट पापा एंड शी यूज टू सिंग मेक मी स्लीप. जो क्या होता था, अवनी के मम्मी और पापा उनको स्लीपिंग करने के लिए, ओके, इन हर चाइल्डहुड स्लीपिंग करने के लिए वो सॉन्ग जो है सिंगिंग करते थे. ठीक है. And then when her mom or her mother listened and heard that singing, what happened after? Mom turn around. जैसे ही उनकी मम्मी ने, अवनी की मम्मी ने सॉन्ग सुना, वो तुरंत टर्न हो गई. ठीक है, उनकी तरफ टर्न हो गई. एंड sang with me. और उनकी मम्मी ने भी वो सॉन्ग अवनी के साथ गाना सिंगिंग करना शुरू कर दिया. ठीक है. मीन्स यहाँ पे अवनी बता रही हैं कि मेरी मम्मी भी मेरे साथ सिंगिंग करना शुरू कर दी. She told me that she always knew I was there. She told me that she always knew. And then her mother told कि उनको पता है, she always knew I was there, कि वो हमेशा अपनी अवनी की केयर करती हैं. She gave me a big hug. और उन्होंने अवनी को एक बड़ा सा हग दिया. ठीक है, वो एक बिग हग दिया. And I felt so happy. And after getting that hug, I really felt so happy. Means why? Because now Avni's mother was also making her attention to Avni, to her daughter. Okay, and then Avni felt very very happy with her mother after getting that hug. Clear? Understood?
Okay, so these are the stories about Dadu's story and mom and Avni's story. Okay, students, prepare it today and learn it, and then write down these exercise in notebook also, and start with me in class WhatsApp group. Clear hai? Okay, it is very very important, especially for your fill in the blanks. Once again I'm telling you. Okay, so don't be careless, just learn it well. Now thank you, have a good day.